حرام زادے ٹھہرے نہ کے بیٹے۔ علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں۔ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راز بازی کا پھل بخشتی ہے۔ آمین۔ کلام اقدس کا بڑا شکریہ جناب، ہم سب کو یہ برکت کا سبب ہے۔ آمین۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ آج ہم بڑی خاص بات سیکھیں گے خدا کی کلام میں سے، دکھوں کے متعلق، آزمائشوں کے متعلق، کہ ہمارے اوپر آزمائشیں کیوں آتی ہیں، ہمارے اوپر دکھ کیوں آتے ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، پولس رسول اس خط کا لکھنے والا مصنف بیان کرتا ہے ایک چیز کو، بڑی خاص بات ہے جو آپ کے ساتھ کرنے کا۔ ہمیں سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ آمین۔ دنیا کے لوگوں کے لیے خدا رازق ہے۔ رازق کا مطلب ہے رزق دینے والا، یعنی لوگ کہتے ہیں خدا ہمارا رازق ہے کہ وہ ہمیں رزق دے دے، بالکل درست بات ہے۔ پھر کہتے ہیں خدا ہمارا مالک ہے۔ خدا ہمارا کیا ہے؟ مالک، بالکل درست ہے۔ جب چاہے وہ ہماری زندگی ہم سے طلب کر سکتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں خدا ہمارا خالق ہے، یعنی خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ جی بالکل درست ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ان تینوں چیزوں کو مانتے ہیں۔ خدا ہمارا رازق بھی ہے، خدا ہمارا خالق بھی ہے، خدا ہمارا مالک بھی ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہم مانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا ہمارا باپ۔ آمین۔ یہ چیز دوسرے لوگ نہیں جانتے، یہ چیز دوسرے لوگ نہیں مانتے، لیکن ہم پہلی تین کے ساتھ ایک چوتھی چیز کا بھی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا ہمارا صرف خالق نہیں، ہمارا صرف مالک نہیں، ہمارا صرف رازق نہیں، بلکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ آمین۔ کیونکہ بائبل بتاتی ہے، اناجیل میں لکھا ہے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ فرزند کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا اور بیٹی۔ آمین۔ جو کوئی بھی پورے دل سے یسوع پر ایمان لے آتا، جو ایمان رکھتا ہے کہ یسوع اس دنیا میں کنواری مریم سے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اس نے ہماری خاطر دکھ سہے، کوڑے کھائے، صلیب پر جان دی، منہ پر تکوایا، مصلوب ہوا، مر گیا، تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، دوبارہ آئے گا، اور وہ خدا کا حقیقی بیٹا ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اس ایمان کے سبب سے وہ شخص خدا کا بیٹا اور بیٹی۔ آمین۔ تو پھر جب ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کی بیٹیاں ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، تو پولس رسول اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان۔ آمین۔ کیا نہ جان؟ ناچیز۔ تنبیہ کہتے ہیں نصیحت۔ ہم اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم سمجھاتے ہیں بیٹا اس کام میں تیرا فائدہ نہیں ہے، تو یہ کام کر لے، بیٹی تو یہ کام کر، یہ ٹھیک ہے۔ آمین۔ والدین ہوتے ہوئے اولاد کو ماں باپ بہت ساری نصیحتیں ہر روز کرتے ہیں، یعنی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بچے اسکول جاؤ، بچے پڑھا کرو، ٹھیک ہے، بچے آپ اچھے نمبر لیا کرو۔ جب اس سے بھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے
जब वो खाना पीना शुरू करता है, माँ बाप उसे खिलाता पिलाता और कहता है बेटा ये खाया कर, फलां चीज ना खाओ, उसका नुकसान होता है। ऐसे कभी कभार ऐसा होता है कि जब बेटा गलत सोबत में बैठता है, गलत महफिल में बैठता है, तो बाप क्या करता है, उसे थप्पड़ भी लगाता है। क्या बाप को दुश्मनी है? क्यों लगा रहा है थप्पड़? उसकी भलाई के लिए, हालेलुया, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए। वो नहीं चाहता कि उसका बेटा नशा करे, क्योंकि वो उसका बेटा है। अगर हमसाए का बेटा नशा कर रहा हो तो बाप को तकलीफ होगी? किसी का बच्चे की इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो किसी का है। अगर हमसाए का बेटा नशा करता है तो इंसान को इतना फर्क नहीं पड़ता, इतनी परेशानी नहीं है। अगर वो आवारा जाकर बैठता है, अगर वो कोई गलत काम करता है, तो क्या कहते हैं अभी जिन्ना का बच्चा अपनी समझाना सीखे, ऐसे ही होता है। लेकिन जब अपना बेटा गलत काम करता है, मुझे पता है जब लोग जवान बेटे रात को घर लेट आए तो माएं सोती नहीं, मां को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? मोहब्बत है ना, मोहब्बत है। ऐसा मोहब्बत में माएं जब 12-1 बजे तक जवान बेटा घर में आए, माएं सोती नहीं है, कहती पता नहीं कितने हालात ठीक नहीं। ठीक है जी, मैं खिदमत के लिए निकला, मुझे कॉल आती है कब आना, कितने बजे आना। ठीक है जी, माँ बाप करते हैं, मिसेज करते, क्या है मोहब्बत है। कोई दूसरा नहीं मुझे करता कार भी कदों होने का, कभी हमसायों की कॉल नहीं आई मुझे, कभी तीसरे चीज चौथे की आया भी आज लेट क्यों हो घर से, कि उनका मेरे साथ उतना रिलेशन नहीं है जितना मेरे माँ बाप का है। तो खुदा के साथ ये महाराज, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है खुदावंद की तंबीह को ना चीज ना जान। बहुत दफा ये खुदा का कलाम ये सारा का सारा मेरी और आपकी नसीहत है। आमीन हालेलुया। ये हमारी तंबीह है, इसमें हर उस बात से मना किया गया जिसमें हमारा नुकसान है। चोरी से मना किया गया, ज़नाकारी से मना किया गया, बुत परस्ती से मना किया गया, नशे से मना किया गया, बुरी महफिल से मना किया गया। जैसी महफिल होगी वैसा ही हमारे ऊपर रंग आ जाएगा। अगर अच्छी महफिल में बैठेंगे हम अच्छे हो जाएंगे, अगर बुरी महफिल में बैठेंगे हम बुरे हो जाएंगे। बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को दिखाती। हमारी सोहबत कैसी, हम कैसे लोगों में बैठते हैं, हम कैसे लोगों के साथ रफाकत रखते हैं, ये हमारी बरकत और लानत का सबब बन सकता है। अगर हमारी सोहबत रूहानी लोगों के साथ है हम रूहानी होते जाएंगे, मुस्बत लोगों के साथ है हम मुस्बत होंगे, मनफी लोगों के साथ रफाकत रखेंगे तो मनफी हो जाएंगे, बुरी सोच हो जाएगी। नशा बाज के साथ बैठने वाला नशा करेगा, चोरों के साथ बैठने वाला चोरी करेगा, कत्ल करने वालों के साथ बैठने वाला एक दिन कत्ल करेगा। हमारी महफिल कैसी, हमारी सोहबत कैसी है, हमारा उठना बैठना कैसे लोगों पे है, हम किन लोगों से मिलना पसंद करते हैं, हम किन लोगों के साथ बैठते हैं जाकर, इसमें हमारी बरकत का राज भी है। अगर महफिल अच्छी है, अगर खुदाप्रस्त लोगों में हम जाते हैं तो हम क्या पाएंगे, बरकत पाएंगे। आमीन। अगर मनफी लोगों में बैठते हैं, नशाबाजों में बैठते हैं और आवारा लोगों के पास बैठते हैं तो हमारी बरकतें हमसे जुदा होती जाती। मेरे अजीजों, खुदा हमसे प्यार मोहब्बत में उसने अपना बेटा दिया और वो हमारी सोहबतों, हमारे कामों, हमारे दिल के ख्यालों को जानता है, इसलिए वो हमें आजमाइश में डालता है। जब हम बुरी राह पर जा रहे होते हैं खुदा हम पर मुश्किल भी ले आता है, खुदा हम पर परेशानी भी ले आता है ताकि ये मेरी तरफ हो। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत सारी मुसीबतों का सबब ये होता है कि हम गलत राहों पर जा रहे होते हैं, खुदा हमें वापस लाना चाहता है। आमीन। वो जिस तरह एक बाप अपने बेटे को मारता है जब वो गलत राहों पर चल रहा होता है, जब वो बेरारवी का शिकार होता है, तो वही बाप वही माँ जो अपने बेटे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते, किसी बच्चे को मारे ना बाहर तो मावा की लैके टुट जाती है। हाँ जी लावा
इन्हें साढ़े बच्चे क्यों मारे मामा ने बड़ी तकलीफ दी। अगर कोई बड़ा बच्चा मारे तो बाप कहते चल हम इन 10 किने दिन मारे, ठीक है। और जब वही बेटा गलत महफिल में जाता है तो कभी कभी कोई बेटा चंगा आंदा मैं अज की चंगी सफाई की, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाप को मोहब्बत। अभी बाप कहता है मेरा बेटा अच्छा इंसान है, अभी मेरा बेटा कामयाब हो, कहीं मेरा बेटा शराब ना पीनी शुरू कर, कहीं मेरा बेटा चोर ना बन जाए। माँ बाप को फिक्र होती। तो इसी तरह खुदा हमारी फिक्र करता है जब हम शैतान के कब्जे में, उसकी गुलामी में, बुतों की गुलामी में, गुनाह की गुलामी में, लातों के अंदर होते हैं। खुदा को हमारी फिक्र खाई जाती है। खुदा इसलिए हमें तंबीह करता है, जिस लिखा है जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी इसलिए कोड़े लगे असी की हो जी, असी ठीक हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सोने को जब भट्टी पर तपाया जाता है तो वो क्या बन जाता है? शाबाश, कुंदन बन जाता है। आमीन। भट्टी के ऊपर जब उसे तपाया जाता है सोना खालिश बन जाता है और उसमें जितनी भी मैल है, जितनी भी मिलावट है, वो क्या हो जाती है? तपाने से अलग हो जाती है। सोना प्योर खालिश कुंदन बन जाता है। आमीन। और उसकी कीमत बढ़ जाती है। उस सोने से जो मिलावट वाला है उससे उसकी कीमत ज्यादा होती है। खुदा हमें क्या करना चाहता है? कुंदन। आमीन। हमारे अंदर भी बहुत सारी मैल, कचैल, गुनाह, नपाकी, हसद, बुग़्ज़, झूठ, प्रेम, लालच, बदी, नपाकी, शहवत परस्ती, छोटी छोटी बातों पे हसद, छोटी छोटी बातों पे मनफी। उसने मुझे सलाम नहीं किया, मैंने भी नहीं करना। उसने मुझे मेरे कर दिया, मैंने भी नहीं जाना। यानी बड़े गुनाह, हसद जो अबलीस की तस्वीरें हैं, जो बदी की लानतें हैं, वो जिंदगी में होती है। खुदा निकालना चाहता है। आमीन। खुदा हमें प्योर करना चाहता है। खुदा हमें मुसीबतों में डालता है। दाऊद को इस बात का तजर्बा हुआ। दाऊद जो खुदा के दिल के मुआफिक है। बुजुर्ग दाऊद कहता है अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयन सीख लूं, सीख सकूं। आमीन। क्या सीख सकूं? आयन, खुदा का हुक्म, खुदा का कलाम, खुदा की कुर्बत में आ सकूं, उसको जान सकूं। अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई। आमीन। क्योंकि उसको तजर्बा है, उसको पता है बगैर मुसीबत उठाने के मैं खुदा की आयन को सीख नहीं सकता। इसलिए मुसीबत उठाना जरूरी है, दुख उठाना जरूरी है, एज़ारसानी जरूरी है, तशद्दुद होना जरूरी है, परेशानी में जाना जरूरी है, क्योंकि इसका नतीजा अच्छा निकलता है। हम खालिस होते हैं, हम प्योर हो जाते हैं, हम कामिल होते हैं। आमीन। अब पता चला खुदा क्यों हमें तकलीफों की प्रोसेस मिला है? इसलिए कि हमारी मैल, कचैल, हमारी गंदगी, हमारी गुनाह की नपाकी हमसे। आमीन। सो लिखा है जिसको बेटा बना लेता है उसके। तुम जो दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। किसके लिए जी? तरबियत, ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ चलता है। फिर वही बात करें, बेटा और बेटी जान, ठीक है। वो कौन सा बेटा है? जिससे बाप तंबीह, ठीक है जी। कहते हैं अगर बाप तंबीह नहीं करता, खुदा तंबीह नहीं करता, इसका मतलब किसी खुदा के बेटे नहीं। और वो शरीर की रस्सी को दराज कर देते हैं। जो बिल्कुल खुदा से दूर बागी बरगश्ता गुनाह के अंदर खुदा उनको आजाद कर देता है, जो मर्जी कर दो। लेकिन जिनसे वो प्यार करता है उन्हें कोड़े लगाता है, उन्हें बार बार तंबीह करता है, उन्हें तौबा का मौका देता है। याद रखें, अक्सर ईमानदार सोचते कि साढ़े भी मुसीबत हमारे लिए मुश्किल, ठीक है जी। हम दुआएं भी करते हैं, हम हदिया भी देते हैं, हम इबादत भी करते हैं, हम दुआ को चर्च में जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं। ये खुदा हमारी बेटी अभी हमें खाने रहने के लिए वो मुश्किल बीमारी भी हो सकती है, वो मुखालफत भी हो सकती है, वो इज़ारसानी भी हो सकती है। आमीन। और इज़ारसानी शुरू से होती है। पहली सदी को जेड़े खुदा दे लोग भी सताए जाते। आमीन।
मसीहों को जिंदा जलाया गया, परिंदों के आगे डाला गया। पूरी दुनिया के अंदर, रोम के अंदर 6 ऐसे बादशाह गुजरे जिन्होंने कहा हम मसीहत को खत्म कर देंगे। तो उन्होंने इतने मसीह को शहीद किया कि उन्होंने कहा तारीख में मसीहत का नामो निशान मत मिट जाएगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो मसीहत को खत्म करने वाले मिट गए, लेकिन मसीहत आज भी पूरी दुनिया के अंदर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मिटाने वाले मिट गए, लेकिन मसीहत आज भी रोशन है। आमीन। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह, हालेलुया। इसलिए ये सच्चाई का रास्ता है। आमीन। और ये खत्म नहीं हो सकता, इसको खत्म करने वाले खत्म हो सकते, लेकिन ये खत्म नहीं। इसलिए हमें मुस्बत होने की जरूरत है, हमें ईमान में पुख्ता रहने की जरूरत है। आखिरी बात करूंगा, लिखा और बिलफेल हर किस्म की तरबीयत खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस हुआ है। आमीन। तभी जदों तरबीयत होती है ना, जदों पाया जाता है भट्ठी ते जो प्रोसेस कोई आसान नहीं होता। चांदी नूं सोने नूं तकलीफ पहुंचती, हीट पहुंचती है, लेकिन ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏ। आमीन। इसी तरह जो खुदा साडी भी तरबियत करता है, सानू भी बड़ा औखा लगता। आमीन। बीमारी में, माली परेशानी में, मुखालफत में, दीगर मामलात में हम बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन आगे खुशखबरी है, लिखा है मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए उनको बाद में चैन के साथ और रास्तबाजी का फल। आमीन। उनको फल, उनको अजर मिलता है। इसलिए मेरे जो हालात में हमें साबित करते रहने की जरूरत है, हमें ईमान में काबिल रहने की जरूरत है। लिखा है मुकाशवा में जान देने तक भी वफादार है तो तुझे जिंदगी का। आमीन। मुझे और आपको वफादार और खुदा पर पुख्ता ईमान रखने की जरूरत है, और हमारा नतीजा बड़ा अच्छा आएगा, आसमान की बादशाही की बादशाही। आमीन। खुदा इस कलाम के स्वाब से मुझे और आपको